Yeah, good afternoon, students. Once again, I welcome you to this another session of our accounts. And the topic for today's discussion is balance sheet of partnership firm. In our previous session, we have discussed about profit and loss account. Today, we will be taking up balance sheet. Now, what is balance sheet? Balance sheet is a statement showing the financial position of a firm on a particular date. All the liabilities are shown on the left hand side and all the assets are shown on the right hand side. Balance sheet is not an account, it is an statement. Be clear, it is not an account, it is an statement showing the financial position of a firm on a particular date in form of asset and liability. So quite often they ask 1 mark objective, what is balance sheet? Or they may ask true and false. Balance sheet is an account. You have to write false. It is an statement. It is not an account. So having understood the meaning of balance sheet is a statement showing the financial position of a concern of the partnership firm on a particular date in form of asset and liability. First, on the top of it, the heading you will write balance sheet of ABC as on. It is a statement on a particular date. So you will write as on 31st March 2020, 2021, whatever is the date. To inner column, two columns you will make for the account. One is inner column, one is outer column. Inner column is for adjustments. In the asset side also two inner column for amount, asset here, liabilities here. Now let us take its component one by one. Under the liability side, first that will come is the capital account of the partners. What all capital is there? The capital balances are there. It will come under the head capital. Whatever is the name of the partner, Ram, Hari, Sham, and their capital amount will be mentioned here, and the total will be come in the outer column. Now, partner current account. We have seen when the partner's capital are on the fixed basis, when the partner keep their capital account on a fixed basis, one more account is opened, that is the current account. All the day-to-day transactions are entered in this, in the current account, and the balance of the current account, if it is credit, it will come here. If it is debit, the debit balance will come over here in the asset side. So the credit balance of partner current account will come here, debit balance will come over here in the asset side. Then next is general reserve. What is the meaning of general reserve? Amount set aside out of profits. प्रॉफिट में से जो अमाउंट अलग रख लिए जाते हैं फ्यूचर में काम में लेने के लिए, वो कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं होते। जो फर्म जैसा चाहे, उनके पास जो भी जरूरत है उसके लिए वो काम में ले सकते हैं। प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अलग निकाल के रख दिया जाता है, फ्यूचर में काम में आने के लिए उसे जनरल रिजर्व कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट को अपन पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो उनका जो बैलेंस होता है, उसका जो बैलेंस होता है वो इधर आता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो वो असेट साइड में आएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो लायबिलिटी साइड में आएगा। लोन ऑन मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का मतलब है कोई चीज अपन ने गिरवी रखी है, कोई चीज का अपन ने किसी के पास चार्ज रखा है, जैसे लैंड या बिल्डिंग बैंक के पास चार्ज में रखा तो उसे
मॉर्गेज कहते हैं। अगर अपन ने कोई चीज गिरवी रखी और उस चीज के ऊपर अपन ने लोन लिया है तो उसे लोन ऑन मॉर्गेज कहा जाता है। अगर कोई तरह का अपन ने मॉर्गेज करके कोई एसेट को गिरवी रख करके लोन लिया है तो उसका अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे लोन ऑन मॉर्गेज। बैंक से अगर कोई लोन लिया है, कुछ बैंक से कुछ पैसा उधार लिया है तो इधर लिखेंगे लोन फ्रॉम पार्टनर। पार्टनर ने कैपिटल के अलावा इन एडिशन टू द कैपिटल अगर कुछ चीज, अगर कोई अमाउंट दिया हुआ है तो उसे लोन फ्रॉम पार्टनर्स के अंडर में यहाँ पे लिखेंगे। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल के साथ साथ अपन बिल रिसीवेबल भी समझ लेते हैं। मैंने आपको जब सिलेबस समझाया था तब आपको बताया था बिल्स पेबल और बिल रिसीवेबल का क्या मतलब होता है। अब एक बार वापस अपन समझते हैं बिल पेबल और बिल रिसीवेबल क्या होता है। सेलर ने बायर को गुड्स बेचे, सेल करी, वो सेल उधार में करी। अब जब उधार में सेल करी तो सेलर अश्योर होना चाहता है कि मेरे को बायर से पैसा लेना है, तो वो क्या करता है, वो एक डॉक्यूमेंट बनाता है। अभी उसको अपन नाम देते हैं एक लेटर बनाता है। वो एक लेटर बना करके बायर के पास भेजता है। बायर उस लेटर के ऊपर लिखता है ये मेरे को एक्सेप्टेबल है, वो उसके ऊपर कबूलनामा लिखता है, एक्सेप्टेड लिखता है। जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज आपके सेपरेट चैप्टर है। ये क्या बन जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब जो सेलर है उसके लिए वो बिल रिसीवेबल हो जाता है, मतलब उसको पैसा इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में पैसा लेना है। जब वो सेलर के लिए बिल रिसीवेबल है तो वो बायर के लिए क्या हो जाता है, बिल्स पेबल, मतलब बायर को क्या करना है, पैसा देना है। तो बायर को पैसा देना है और सेलर को पैसा लेना है। तो सेलर के लिए बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल आपके असेट साइड में आता है और बिल्स पेबल आपके लायबिलिटी साइड में आता है। नेक्स्ट आपका है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट पीरियड के लिए आपने बैंक से कुछ, आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसा आपने बैंक से लिया है शॉर्ट पीरियड के लिए, तो ये इसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर्स को बैंक देती है। तो ये एक तरह का बैंक से आपने उधार लिया है और वो लायबिलिटी साइड में आता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब जिनको आपको पैसा देना है, अमाउंट पेबल, ये आपको पैसा दूसरे को चुकाना है। जो पैसा दूसरे को चुकाना है डेफिनेटली वो लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। किस तरह के एडजस्टमेंट? एग्जाम्पल, ये एडजस्टमेंट अपन बहुत डिटेल में जब अपन एडजस्टमेंट पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में तब अपन समझेंगे। अभी समझने के लिए एक शॉर्ट एग्जांपल से समझते हैं। क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए के आपके ट्रायल बैलेंस में हैं। आपको नीचे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 10,000 रुपए की परचेज आपने रिकॉर्ड नहीं करी। ठीक है, आपने परचेज रिकॉर्ड नहीं करी तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए। तो क्या होगा, आपके क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। तो 1 लाख रुपए तो आप यहाँ पे लिखेंगे और अनरिकॉर्डेड परचेजेस आप यहाँ पे लिखेंगे, 10,000 रुपया लिखेंगे और 1,10,000 आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो इस तरह का एडजस्टमेंट कोई भी और भी तरह से हो सकता है। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। फिर अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, पहले इसका मतलब समझते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर क्या है? देखिए, जब आप क्रेडिटर को पैसा देने जाते हैं तो एक टेंडेंसी होती है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, आप बोलेंगे अरे थोड़ा पैसा तो कम लो, थोड़ा, अगर मेरे को 1,000 रुपया देना है तो 975 रुपया लो, 990 रुपये लो। तो ठीक है, व्यवहारिक तौर पे लेन देन में इस तरह की बार्गेनिंग चलती है और आपका सप्लायर, आपका क्रेडिटर आपसे कम पैसे लेता है तो उसने क्या करा, आपको डिस्काउंट दिया। तो जो आपको क्रेडिटर, आप एक अनुमान लगाते हैं। प्रोविजन का मतलब क्या है, एक अनुमान, एक एस्टिमेटेड फिगर है कि जब हम क्रेडिटर्स को चुकाने जाएंगे तो वो हमको इतना डिस्काउंट देगा। तो सपोज आपको 1 लाख रुपया क्रेडिटर है और आपको
लगता है कि आपको 1000 रुपए का वो डिस्काउंट देगा, तो आपके एक्चुअल क्रेडिटर्स कितने हैं? 99,000। तो आपको 1000 रुपया माइनस करके यहाँ पे 99,000 का अमाउंट लिखना होगा। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब समझते हैं। ये मतलब है, बच्चों चीजों को रटो मत, उनका मतलब समझ लो। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा कि ये चीज यहाँ जाती है, ये चीज यहाँ जाती है। जब आपको मतलब समझ में आएगा तो अपने आप आपका हाथ चलेगा कि इसका तो ये करना है। मैंने देखा है कि बच्चे रटते हैं, प्लीज आप इनका मतलब समझिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड। क्या मतलब है? एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। आपने ये खर्चा तो कर दिया, आपने ये फैसिलिटी तो ले ली है, लेकिन आपने इसका पेमेंट नहीं करा है। तो जिस चीज, जो फैसिलिटी आपने ले ली है, जो एक्सपेंडिचर आपने इनकर कर लिया है और जिसका पेमेंट आपने नहीं करा है, वो आपकी लायबिलिटी है और उसको आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इतना एक्सपेंसेस के लिए पैसा देना बाकी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का क्या मतलब? इनकम विच इज नॉट अर्न। ये हमने इनकम कमाई नहीं है, लेकिन इसका हमको एडवांस में पेमेंट मिल गया है। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, उसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो जो चीज हमने अर्न नहीं करी है वो हमारी इनकम नहीं हो सकती है। उसको जब तक हम उसको अर्न नहीं कर लेते वो हमारी लायबिलिटी है और उसको हमको लायबिलिटी साइड में बताना। प्रोविजन फॉर टैक्सेस। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमको हमारे प्रॉफिट के ऊपर या और कोई दूसरी चीज के ऊपर हमको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो हमको टैक्स पे करना है वो हमारी लायबिलिटी है और उसको लायबिलिटी हेड में बताना पड़ेगा। लायबिलिटी हेड में बताना पड़ेगा कि हमको ये टैक्स देना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। और फिर हम लायबिलिटी साइड के एंड में टोटल करेंगे। लायबिलिटी साइड हमने समझी बच्चों। अब हम आते हैं असेट साइड पे। किसके ऊपर आते हैं हम? असेट साइड के ऊपर। असेट। असेट का मतलब प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस। प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस आर नोन एज असेट। इसमें पहला है गुडविल। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। इसे हम देख नहीं सकते। टेंजिबल जिसे देख सकते हैं, इंटेंजिबल जिसे देख नहीं सकते। ये एक इंटेंजिबल एसेट है और चूंकि इट इज मेजरेबल इन मनी, इसके लिए हमने पैसा पे किया है या गुडविल क्रिएट करी है। कैसे क्रिएट करते हैं वो आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, लेकिन गुडविल हमारा असेट है और उसको असेट में लिखा जाता है। लैंड एंड बिल्डिंग। कोई लैंड है, उसके ऊपर बिल्डिंग बना रखी है, वो हमारा असेट है। अब लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग के ऊपर, लैंड के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं है बच्चों। बिल्डिंग के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम उसको रिड्यूस करेंगे उसकी वैल्यू में से और नेट फिगर को आउटर कॉलम में लिखेंगे। इनर कॉलम में वो चीजें आएगी जिसमें कुछ एडजस्टमेंट करना हो, नहीं तो वो अमाउंट डायरेक्टली अपन बाहर लिख देंगे। जैसे गुडविल में कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको डायरेक्टली बाहर लिख देंगे। देखिए ये बुक आपकी पहली बार छपी है तो इसमें कई तरह के मिसप्रिंट हैं। गुडविल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये अमाउंट को बाहर ही लिखना चाहिए था, लेकिन यह इनर कॉलम में लिख दिया है। इस तरह की कई मिस्टेक्स है, जैसे जैसे आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। तो अपन बात कर रहे थे लैंड एंड बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है, आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करके आप अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी मैकेनिकल डिवाइस है जिससे आप प्रोडक्शन करते हैं, जो प्रोडक्शन के इस्तेमाल में काम में आती है, उसको प्लांट एंड मशीनरी कहा जाता है। और प्लांट एंड मशीनरी आपका सेट है, इसको भी आप पहले इनर कॉलम में लिखेंगे, कोई डेप्रिसिएशन है उसको माइनस करेंगे और अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखेंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर, चेयर, टेबल्स, अलमीरा और भी कई तरह के आपके फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बिजनेस में हो सकते हैं। वो आपका असेट है, वो आप उसके मालिक हैं
प्रॉपर्टी ओन बाय द बिजनेस है, आप उसको लिखेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और नेट अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे। और भी किसी तरह का इक्विपमेंट हो सकता है, वो यहाँ पे आएगा, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे नेट अमाउंट। मोटर वेन, डिलीवरी वैन, कोई आपके पास कार्स है, डिलीवरी के ट्रक्स हैं, इनर कॉलम में लिखेंगे, जो भी डेप्रिसिएशन है माइनस करेंगे और नेट अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब देखिए, एक है लीज होल्ड और दूसरा है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। देखिए, अब इन दोनों में फर्क आपको समझना होगा कि लीज होल्ड क्या है और फ्री होल्ड क्या है। फ्री होल्ड का मतलब है आप उस चीज के एब्सोल्यूट मालिक हैं, आप उस चीज को जैसे चाहें बेच सकते हैं, जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लीज होल्ड का मतलब है आपके पास उसका टेम्पररी राइट है। क्या है, आपने उसको टेम्पररी भाड़े पे लिया है और जब वो पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी आपको वापस उसके एक्चुअल मालिक को देनी होगी। एक है लीज होल्ड और एक है फ्री होल्ड। फ्री होल्ड के आप एब्सोल्यूट मालिक हैं, लीज होल्ड के आप टेम्पररी राइट है वो आपका, और जब वो पीरियड राइट का पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी आपको वापस उसके मालिक को रिस्टोर करनी, वापस देनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपने कुछ पैसे दिए होंगे ना लीज होल्ड राइट के लिए, तो वो आप इनर कॉलम में लिखेंगे और डेप्रिसिएशन माइनस करके आप नेट अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद प्रीमाइसेस, आपके पास कोई प्रीमाइसेस है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करा है, वो नेट ऑफ करके आप आउटर प्रीमाइसेस का ग्रॉस अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और आउटर कॉलम में लिख देंगे। फिर है पेटेंट। पेटेंट क्या है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो आपको राइट देती है जिससे कि आप दूसरे को उसका इस्तेमाल करने से अवॉइड कर सके। दूसरा, आपके पास राइट है कि दूसरा उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकता और आपके पास ही राइट है वो चीज बनाने का, बेचने का। तो आप क्या है, दूसरे को उस चीज के लिए, बेचने के लिए, बनाने के लिए आप दूसरे को उस राइट से एक्सक्लूड करते हैं, दूसरा वो काम नहीं कर सकता। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। क्या है ये, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या है ये, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आपका नेक्स्ट आइटम है लूज टूल। क्या है, लूज टूल। नेक्स्ट आइटम है लूज टूल। लूज टूल क्या होता है, जो छोटे मोटे इक्विपमेंट होते हैं और वो बहुत जल्दी यूजलेस हो जाते हैं, उनको लूज टूल की कैटेगरी में रखा जाता है। जो भी उनके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है वो लेस करके नेट अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखा जाता है। फिर इन्वेस्टमेंट, कोई एक्स्ट्रा पैसा आपने शेयर्स, डिबेंचर, बैंक की एफडी ले रखी है, उसको इन्वेस्टमेंट में लिखा जाता है और उसको यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं है तो इसको आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे। स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या है, पार्ट ऑफ मशीनरी, रॉ मटेरियल कैप्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेन आइटम। पार्ट्स ऑफ मशीनरी या कोई स्पेयर पार्ट यूज कर मेन प्रोडक्शन करने के लिए, आपने मेन प्रोडक्शन में काम के लिए आपने रख रखे हैं, उसको स्टोर्स एंड स्पेयर कहा जाता है। डेप्रिसिएशन, उसमें कोई रिडक्शन इन द वैल्यू हुई है तो उसको लेस करके
बाकी का अमाउंट आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस नॉट इनकर बट पेड, सर्विसेज नॉट अवेल, आपने फैसिलिटी का इस्तेमाल या सर्विसेज का अवेल नहीं करी है, आपने अवेलमेंट नहीं करा है, आपने एक्सपेंसेस इनकर नहीं हुए लेकिन उनका एडवांस में आपने भुगतान कर दिया है। एक्सपेंसेस नॉट इनकर और फैसिलिटी नॉट अवेल बट पेड इन एडवांस और पेड बिफोर हैंड, दे रिलेट टू नेक्स्ट ईयर। वो करंट ईयर से रिलेट नहीं करते हैं, वो नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करते हैं, उसे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब कि आपने इनकम कमा तो ली है लेकिन आपने रिसीव नहीं करी है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। अब जो आपने इनकम कमा ली है वो आपका राइट है, आपको रिसीव करने का अधिकार है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है और आप इसे असेट साइड में लिखेंगे। लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को पैसा उधार दिया है, कहीं पे एडवांस जमा कराया है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आप एडवांस जमा कराते हो, टेलीफोन डिपार्टमेंट में आप एडवांस जमा कराते हो, गवर्नमेंट के पास एडवांस टैक्स जमा कराते हो, तो ये जो भी पैसा किसी को उधार दिया है या कहीं पैसा जमा कराया है वो लोन्स एंड एडवांस के हेडिंग में आएगा और आप उसे यहाँ लिखेंगे। फिर साल के आखिर में जो भी फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल बचा हुआ है वो आप क्लोजिंग स्टॉक में लिखेंगे। डेटर्स, जो आपने जिन लोगों को उधार माल बेचा है, जिन कस्टमर्स को उधार माल बेचा है, उनसे पैसा रिसीव करना है, वो डेटर्स हैं आपके, और वो आपका असेट है, आप उसे असेट साइड में लिखेंगे। अब देखिए उसमें एडजस्टमेंट करना है। अगर ये एडजस्टमेंट मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, सेपरेटली मैं आपको अलग लेक्चर में बताऊंगा क्योंकि ये एक डिटेल डिस्कशन है। यहाँ पे जो की बात आई है इसलिए एक पासिंग रेफरेंस देना भी जरूरी है। डेटर्स में से बेड डेट घटा देंगे, आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन सबको पता है, 11वीं क्लास सब पढ़ के आए हैं। आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होती है वहां पे अगर कोई बेड डेट दे रखे हैं तो आप उन बेड डेट को माइनस करेंगे। और फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इसका क्या मतलब होता है? जब डेटर्स आपको पैसा, जिनसे आपको पैसा लेना है, जिन कस्टमर से आपको पैसा लेना है, और जब वो पैसा देने आएंगे तो स्वाभाविक बात है, नेचुरल बात होती है, कस्टमर बार्गेन करता है, वो कहता है मैं पैसा तो दे रहा हूँ, मैंने इतना सामान आपसे खरीदा, अब थोड़ा मेरे को कंसेशन दो, मेरे को थोड़ा पैसा कम लो, तो आप उसे रिबेट देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो सपोज करो 1 लाख लेना है आपको, आप 500 रुपये का डिस्काउंट देंगे तो 99,500 आपकी डेटर्स की वैल्यू आ जाएगी, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, आपका कोई नुकसान हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना की है तो इट इज एन इंश्योरेंस क्लेम, और जो भी आपको पैसा लेना है वो आपका असेट है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। बिल रिसीवेबल, मैंने आपको बिल्स पेबल समझाते वक्त समझा दिया, जो पैसा आपको अपने डेटर से लेना है उसका डॉक्यूमेंट आपके पास है, लिखा हुआ आपके पास है रिकॉर्ड, तो वो आपका, अगर आपको रिसीव करना है, पैसा लेना है, तो वो आपके लिए बिल रिसीवेबल है। अगर उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में आपको पैसा देना है तो आपके लिए पेबल है, वो लायबिलिटी साइड में आएगा, लेना है तो वो असेट साइड में आएगा। फिर कैश इन हैंड, जो आपके पास नगद रुपये पड़े हुए हैं गले में, कैश बॉक्स में, उसे कैश इन हैंड कहा। फिर जो भी पैसा कैश एट बैंक, जो भी पैसा आपका बैंक के पास पड़ा हुआ है, करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, उसको बैंक बैलेंस कहा जाता है और वो कैश एट बैंक में आता है असेट साइड। फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, देखिए ये मिसप्रिंट है, इसको काट करके आप सही कर लीजिए प्लीज,
ये डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो यहाँ पे आता बच्चों, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो यहाँ पे आता। इधर भी क्रेडिट लिखा हुआ है और इधर भी क्रेडिट लिखा हुआ है, तो ये गलत बात ही है ना। अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट में कोई डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब पार्टनर ने कुछ ज्यादा पैसा विड्रॉ करा है, फर्म से पैसा ज्यादा लिया है, तो उसे उसका बैलेंस डेबिट होगा। तो डेबिट बैलेंस यहाँ पे आएगा, इसको काट करके सही कर लीजिए, ये डेबिट। तो एक क्वेश्चन ये अक्सर बन जाता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस। तो आपको फॉल्स लिखना है, क्योंकि वो बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का या क्रेडिट करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो अगर डेबिट बैलेंस होगा तो असेट साइड में आएगा और क्रेडिट बैलेंस होगा तो इधर आएगा। तो ये सब बैलेंस शीट के बारे में था, सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझसे पूछेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।